अस्सलाम वालेकुम, आई एम सदात और मैं हूं नईम। और आज हम एक रिएक्शन वीडियो करेंगे पाकिस्तानी कलाकार, मशहूर कलाकार अली सेठी का। उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो बनाया जिसका नाम है रंग। रंग मीन्स कलर्स, सो वी आर गोना बी डूइंग अ रिएक्शन वीडियो टू दिस पाकिस्तानी आर्टिस्ट। लेकिन शुरू करने से पहले हम एक आर्टिकल देखते हैं जो अली सेठी के बारे में था, विच वाज इन हार्वर्ड मैगजीन। दिस वाज द नवंबर दिसंबर 2019 मैगजीन। और इस आर्टिकल में अली सेठी साहब के बारे में ये लिखा गया, फॉर सेंचुरीज सूफी पोइट्स हैव डेल्ट विद टॉपिक्स लाइक जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, कल्चरल डिफरेंस एंड पॉलिटिकल स्ट्राइफ। तो अली सेठी साहब ने ये कहा, द पोएम्स आर सो एक्सट्रीमली इंक्लूसिव, ही सेज, and the appetite for Sufi music in Pakistan allows people like me to get away with a lot of potentially subversive stuff through the metaphors of Sufi poetry, these beautiful, deliberate ambiguities. तो subversive का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में या पाकिस्तानी मुआशरे में जो वो बदलना चाहता है। You know, he wants to subvert it. तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो वो subvert करना चाहता है। There are some wrong, haram, un-Islamic practices, not only in Pakistan but in many Muslim cultures, Absolutely. which we would also want to subvert. We would also want to change. कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तानी मुआशरे में जो हम भी बदलना चाहेंगे। मसलन हो गया forced marriage या रिश्वत लेना, झूठ बोलना। इसके अलावा जो कारोबारी का हिसाब किताब है, औरतों को जहेज़ मांगा जाता है, या फिर यह है कि जब लड़की पैदा होती है तो उसके ऊपर औरत के साथ बदसलूकी की जाती है और उसको कसूरवार ठहराया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, या फिर उसको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता जो उसका हक है। तो इसके ख़िलाफ़ तो हम भी चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, लेकिन हमें लगता है कि अली साहब का कुछ और ही एजेंडा है जो हम आगे आके देखेंगे। Yeah. So this is the question. What exactly about Pakistani culture and society does Ali Sethi wish to subvert? Maybe we'll get a better idea when we look at the lyrics of his new song Rang. तुम आए तो ये रंग आए, तुमसे ही है करार, तुम लाए ये नज़ारे तो बजे दिल के तार। So basically to the effect of like, you brought all these wonderful diverse colors into my life. Yeah. You've brought this new, I don't want to say lifestyle, but a new perspective into my life. New like satisfaction, and then you strung the chords of my heart. नहीं तो रुक जाती, ठहर जाती, कभी ना आती ये बहार. Had it not been for you, this spring would have never happened. These emotions, these feelings would have never come to fruition. And this positive change would not have come about. बहुत दिनों की बात नहीं है, आंसू की बात नहीं है. It's not a thing of many days, and there's no need to cry. So it's not going to be very long now. It's not going to be a long wait. It's not going to be a much further long wait. And this is not the time for tears. This is not the time to cry. करते हो काहे तकरार, समझाए कौन तुमको, दिखलाए बार बार. Why are you arguing? Who's going to explain it to you, and who's going to show it to you again and again? So perhaps whatever this is about, this seems to be aimed at the opposition. Whoever is opposed to this change, Right. to this new spring, why do you keep on arguing? How long are you going to resist? So before we look at some of the images from the video, we won't be playing the music, but just the images of the video. I just wanted to mention that, there were a couple of Indian ladies who already did a reaction video to Ali Sethi's music video. We'll play a couple of clips near the end. And one of the ladies said something that I really agree with. Of course, she meant it in a different way because they were both over the moon about this video and they were endorsing the video, not just its artistic merit, but its moral message as well. Right. So although we will disagree with their moral assessment of Ali Sethi's music video, the point that she made, which was very interesting, was that the lyrics of this song would mean something else without the aid of the visual imagery. So in other words, if you just hear the song or the words of the song, they might mean something different to you or something more innocuous perhaps. It's just about, romantic love, like a couple that can't get together and, but Right. soon the parents will get on board. Don't worry, our love will triumph in the end, something like that. But when you look at the visual imagery in the music video, Right. then the meaning of the lyrics will become a bit more clear. इसमें यह है कि अगर आप गाना सिर्फ सुने बगैर वीडियो के तो आप कभी नहीं सोच सकेंगे कि इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है. ये आम प्यार मोहब्बत वाला गाना है जो बॉलीवुड और इंडियन फिल्मों के अंदर या पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर होता है.
तो मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, यहाँ तक कि आप इसकी वीडियो देखेंगे और आप बोलेंगे हैं ये क्या है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि वीडियो में म्यूज़िक शुरू होने से पहले भी ये अली सेठी का जो एक ये नया अंदाज है, he's got like a new fashion, like a new look, and in none of his other music videos does he have this literally different colors now, right? He's got his Right. hair dyed blonde. Usually he's just a regular Pakistani singer. He sings mostly ghazal songs, and so he just has the regular, dark hair. But I don't know if I'm jumping the gun and saying that, like he looks kind of gay in this scene. What do you think? तो मुझे भी ऐसा लगा, पहली मरतबा जब मैंने इसको देखा तो मेरे जहन में ब्रूनो, जो एक साशा बैरन कोहेन की एक वीडियो है, उसके अंदर उसने गे कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, उसमें वो प्रैक्टिकल जोक्स करता है लोगों के साथ, या फिर ये है कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर माइलो यूनाप्लस, उनकी तस्वीर। और बाकी ये है कि जो गे कल्चर के अंदर अक्सर लोग जो है इस तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो ये है कि मतलब इसमें शबाहत है, हम ये नहीं कह सकते कि पिन पॉइंट की ये सिर्फ वही करते हैं, लेकिन यह है कि इसमें काफ़ी जो है इसका काफ़ी अक्सार है इसके। तो हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई जो इस तरह लगता है या जो ये फैशन करता है वो ज़रूर गे होता है, बट दिस लुक इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट लाइक अ सेगमेंट ऑफ द गे कम्युनिटी, इज़न्ट इट? बट जस्ट इन केस वी आर जंपिंग द गन, वी कैन see what comes up here. Okay, so I mean, most love or romantic music videos in Pakistan and India don't necessarily begin like this. Like you've got two young guys standing by the water. तो दो नौजवान मर्द हैं जो पानी के किनारे खड़े हुए हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो गे हैं. I mean, it doesn't have to mean that. नहीं, क्या पता मछली पकड़ने गए हो. Maybe they're fishing, maybe they're पता नहीं कपल हैं कि नहीं, लेकिन अब ये छत पे खड़े हैं. They're standing on the roof now. अब ज़रूरी नहीं है, क्या पता पतंग उड़ाने के लिए खड़े हो, या क्या पता लाइट चली गई हो तो गर्मी की वजह से वो बाहर आ गए हो. They're flying a kite, maybe on the roof, or maybe they're trying to look at some girls on another roof. Possibly. What's enough done, right? Yeah, absolutely. Okay. मतलब ये है कि ओवर द टॉप मेकअप है. अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देख, मैं ये सोच रहा था कि अक्सर जो ये जो स्टाइल जो है मेकअप का, I mean, it's a very, like in Pakistan, this would be a typical look of like a lady of the street, like unfortunately, this kind of like the look of a prostitute in Pakistan. I'm not saying that this young lady is a prostitute. हम ये नहीं कह रहे कि ये औरत जो है ये तवाइफ है, लेकिन इनका जो फैशन है, it's like of a typical over the top. Yeah. Not that we're like experts in detecting hookers or something like this, Yeah. Thankfully not. अच्छा, अब देखा दोबारा से दो औरतें हैं, दो लड़कियां हैं, साथ साथ गाना गा रहे. I mean, I don't know, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? Like, could they just be sisters or friends singing in the washroom mirror or something? तब ये कि इसमें भी कोई ख़ास, जैसे कहते हैं, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसके अंदर कोई ऐसी बात है. अब आपने देखा कि ये दो लड़कियां हैं, पहले दो लड़के थे, अब ये दो लड़कियां हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो गाना गा रही हैं किसी शीशे के सामने. Okay, what's going on here now? I mean, these look like transgender men or women. मतलब ये जो दो जिनको हम हिजड़े कहते हैं या मुखन्नस कहते हैं, ये दो हैं जो आपस में एक दूसरे से मतलब गले मिल रहे हैं या खुशी का इजहार कर रहे हैं. तो इसमें भी अब ये है कि पहले आप देखें कि दो लड़के थे, दो लड़कियां हो गई, अब ये दो जो हैं हिजड़े जिनको हम कहते हैं वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं. Who are both of them are identifying and dressed as women, and it looks pretty clear that they are like a couple. Right. Even though they have like masculine features, you can tell they're not original females. Hopefully not. अच्छा, अब दोबारा से वही नौजवान मर्द जो हैं, the two young guys walking by the water. और ये दो लड़कियां नाच रही हैं और ये भी नाच रहे हैं. तो सारे नाचना गाना है. अच्छा, ये जो है ये सीन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अब पता नहीं are they meant to be Pakistani Hindus या Hindus in India. It doesn't really make a difference. लेकिन लगता ऐसा है कि वो होली खेल रहे हैं
लेकिन Holi is a Hindu religious festival in which they throw colors on each other and they put colored powder on each other or whatnot. Okay, that's fine. But like the manner in which this guy is putting the holy colors on the other guy, उनका जो अंदाज है डालने का, ये आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? ये मतलब ये है कि हमने भी होली देखी है, बहुत हज़ारों इंडियन फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मर्द को इस तरह लगा रहा है। अक्सर औरत को करते हैं इस तरह। मतलब ये है कि भाई हाथ इस तरह पकड़ लेना मर्द का या यूं पकड़ लेना, क्योंकि ये कि वेस्ट के अंदर जो है ये चीज़ें थोड़ी सी समझ आती हैं, लेकिन अगर हम बराबर में खड़े हुए तो ये गे नहीं समझा जाता। लेकिन ये है कि अगर मैं सदात को इस तरह करूँ तो ये मामला जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये ऐसी बात है जो इवन अगर मेरी बीवी देखे, अल्लाह ना करे, तो वो भी समझ जाएगी कि ये क्या मामला है। क्योंकि ये कि अगर हम हाथ पकड़े हुए होंगे या गले में हाथ डाले हुए होंगे तो ये बात जो है ना, ये एक मर्दाना चीज़ है जो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये कि इस तरह मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाथ लगाना या फेमिनिन तरीके से हाथ लगाना जो है, ये तो देख करके जिसे कहते हैं मामला ख़राब हो जाएगा। I mean, now if we analyze those lyrics in light of some of these images, you remember, like this is, like the change is going to come soon. You bring wonderful colors into my life. We won't have to wait much longer. Right. Like the change is coming. This is not the time to cry. Right. This is the time to be happy. Right. Change is in the air. Maybe that's one way of putting it. It kind of, is connecting and clicking together now in terms of what looks like to be a pro-LGBTQ message. Yeah, बिल्कुल। मतलब ये कि जो तस्वीर हल्के हल्के साफ हो रही है कि पहले 2 लड़के थे, चले सही है, फिर 2 लड़कियां थी, फिर सही है। अब ये है कि फिर 2 हिजड़े हुए, फिर ये आपस में नाच रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये मोहब्बत है और ये है कि अब रोने का टाइम नहीं है और थोड़े ही वक्त के अंदर जो तब्दीली आने वाली है। और फिर इसके बाद ये है कि उसके आगे जा कर के अब देखते हैं क्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस कपल को, जो एक बूढ़ा कपल है और ये सिर्फ एक आम कपल है जो हमें नज़र आता है, मतलब ये कि एक औरत और मर्द को जो सिर्फ एक ही सीन में लिया गया है, उसमें आप देखें कि ये पुराने फरसूदा जो है, अब आप बैकग्राउंड देखें तो लाइट भी नहीं है, उसमें लालटेन टाइप का जो है लैंप लगा हुआ है और फिर ये रिकॉर्ड चला रहे हैं। और जो लिरिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तुमसे कौन बहस करे, तुमको कौन समझाए, तुमसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब तुम लोग पुराने ख्याल के हो, दकियानूसी हो और हम जो है नई जनरेशन है। मतलब ये अब स्पॉटिफाई और MP3 सॉन्ग्स और इन सब का ब्लूटूथ का जो दौर है और तुम लोग अभी तक रिकॉर्ड पे जा रहे हो। तो मतलब ये कि प्रोग्रेशन जो है वो इस तरफ जा रहा है। So this is very well thought out. मेरे ख्याल में ये इत्तेफाक की बात नहीं है. It's not a coincidence that the only heterosexual couple in the video, right. heterosexual का मतलब जो normal आदमी और औरत हों, they happen to be like an old couple. They're a very old couple, as you said. They're kind of in the shadows. They're in the dark, and this elderly man is sitting there, and he's very nostalgic. He's reminiscing over his old vinyl record collection, right. And these are all things of the past. I mean, what are vinyl records now? They're old, they're outdated, they belong in an antique shop, they're obsolete, right? So in the same way, those who object to these new spring colors that are coming, right. to these new expressions of love that are coming, they too belong, in another century. Their mode of thinking is outdated, and they have to move aside and make way for something new now. Those people who would object to the pro-gay agenda, to the pro-transgenderism agenda, they, like those old vinyl records, are outdated and a part of the past. Yeah. Here we have somebody releasing some multicolored balloons. Like, again, normally that would look innocent and not a problem. लेकिन right. इस वीडियो के अंदर जब हम देखते हैं these multicolored balloons, again, it seems to kind of connect with the pro-LGBTQ thing. जी बिल्कुल, जिस तरह इनके रेनबो का झंडा जो है, जो इनकी पहचान है, आप देखें कि वो सारे कलर तकरीबन मौजूद हैं इसी तस्वीर के अंदर. We've got the two guys again. And this is interesting. Just as he's dancing and he looks up, तो उनके पीछे, just right behind him, you see, the heart there, which is clearly the LGBTQ colors. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसके अगर आप पीछे देखें तो जो दिल का शेप बना हुआ है, इसके अंदर जो रेनबो का झंडा बना हुआ है, जो कि LGBTQ और जो हम जिन्स परस्त हैं, या इनके अब तो काफ़ी जिसे कहते हैं कि तरीके हैं, बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल और ये सब.
तो इसका निशान जो है ये बिल्कुल पीछे जो है, ये इत्तेफाक की बात नहीं है। मतलब जिस तरह इत्तेफाक की बात ये नहीं है कि अगर सदात हमारे साथ इस वीडियो के अंदर इस वीडियो में होते और पीछे फ्राइड चिकन का, If I was dancing and there was like a picture of a halal fried chicken behind me, like that's not just a coincidence, right? You think, no, man, this has been planned. this has been right? planned, definitely, especially with Sadat. Again, two ladies and holding hands. Now, again, I'm just trying to make sense of this. I'm trying to understand it as best as I can. I'm guessing that these are the colors of Holi, Right. and they're being blown. But I mean, look, we're no experts on Hindu culture or on the Hindu religion, but as far as I know, it's not a part of Holi celebrations to tie up some guy with a waxed chest, right, and blow the holy colors on his chest. I mean, it's kind. I don't know. और स्पेशली आजकल तो सारे हॉलीवुड एक्टर बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो मसल्स बना रहे हैं, ये पतले दुबले, तो ये समझ में भी नहीं आता। हाँ, ये भी बात सही है कि feminine figure है. It's not a very masculine figure. I mean, most South Asian men have here on their chest. Like what's going on here, right? And again, the colors connects with the LGBTQ theme. Yeah. And again, the multicolored flower petals falling down, and the two young ladies celebrating and jumping up. I mean, at this point, it's unlikely that these two girls are like they're just friends or they're just sisters. Like, what are they celebrating? What are they jumping up for? And the multicolored petals. What do you आपके ख्याल क्या है? इंसान को महसूस करना चाहिए कुछ चीज़ें मतलब ये कहीं नहीं जाती, लेकिन ये कि देखने में आपको पता चलता है क्या हिसाब किताब है। तो जिस तरह ये वीडियो है कि दो लड़के दो लड़कियां, फिर उसके बाद एक अकेली लड़की, और फिर उसके बाद दो हिजड़े जो है, इनको दिखाया जा रहा है, फिर ये मोहब्बत की बात की जा रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि मोहब्बत इनके दरमियान आपस में एक ऐसी चीज़ है जो हो रही है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो बूढ़ा कपल दिखाया उसको, जिसे कहते हैं ना कि फरसूदा और पुराने ख्यालात का मालिक बताया गया, जिनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको पीछे छोड़ दो और हमें आगे बढ़ना चाहिए नई चीज़ों के साथ। तो ये कि अगर आप इसको पूरे तरीके से पूरी वीडियो को कनेक्ट करें तो मैसेज साफ है। मतलब हम जहाँ वेस्ट में रहते हैं तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल आम तौर पर नज़र आती हैं, क्योंकि अगर आप अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो ये सब चीज़ें, मतलब लड़के का हाथ पकड़ना, ये सब साथ रहना, ये कोई आम चीज़ है। मतलब लड़के आपस में 3-3, 4-4 बाइक के ऊपर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लड़कियाँ आपस में घूम रही होती हैं, लेकिन ये नहीं सोचता कोई भी कि ये लड़की इसके साथ है, सेक्सुअली इन्वॉल्व है। मतलब ये कि ये हम जिन्स परस्त है, ये लड़का लड़के के साथ है। जब भी हम देखते हैं तो उससे दोस्त हैं, भाई हैं, मोहल्ले वाले हैं, लेकिन ये है कि अब जो है इसके अंदर जो वीडियो का जो मैसेज है वो तो साफ है कि इस तरह की मोहब्बत जो है उसको जो रंग है वो इस मोहब्बत के लिए है। And again, it finishes with those two young guys, throwing the holy colors at each other. So this was the guy who was in charge of the cinematography, basically, putting all these visuals together, Umar Riaz. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक इंडियन औरत है जिन्होंने also एक रिएक्शन वीडियो किया है, उनका नाम है ज्योति सरदार जी। So I think she, in her reaction video, she had some interesting insights, and by seeing that, we can see if are we just imagining this gay theme in the video, or is it as obvious to them as it is to us? And how they use different layers of like different people, and what the song probably means to them, and how it was going so beautifully for each kahani, which is so beautiful. I mean, I think he's just trying to, celebrate pride and love in all its forms. Love. तो वही बात होगी, like pride, obviously हम समझते हैं, like especially in the Western context, it means like gay pride. तो असल में जो हमारे उर्दू के नाज़रीन हैं जो बाहर मुल्कों में नहीं रहते, मतलब ये कि जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहते हैं, उनको प्राइड के बारे में पता है। मतलब प्राइड इनका मतलब फ़ख्र नहीं है, इस प्राइड का मतलब एक ख़ास रैली है जो हम जिन्स परस्त निकालते हैं हर साल, और इसका एक ख़ास मखसूस दिन है जिसमें ये इस बात में फ़ख्र का इज़हार करते हैं कि हमने जो ये हुकूक जो हैं ये हासिल किए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है कि ये इस बारे में बता दें कि ये प्राइड के एजेंडा जो है इसके मुताबिक है, ये इस बात का इज़हार करेंगे।
what I got was love in all its forms. Yeah. Like, you know, Yeah. friendship, in relationships, in lost love, or in love that you have grown old with. Like, you know, all kinds of love. Love that exists, self-love. Because how there was Yeah. that girl who was like, you know, she was like happy with herself. It was so beautiful. तो असल में ये है कि ये बोल रहे हैं कि इसमें मोहब्बत को सेलिब्रेट किया, चाहे वो मर्द मर्द के साथ हो, औरत औरत के साथ हो, हिजड़े हिजड़े के दरमियान हो, या सिर्फ अपने साथ ही मोहब्बत हो। क्योंकि असल में ये है कि ये बात अब सिर्फ हम जिन्स परस्ती तक नहीं रही है। तो ये है कि अब ये बायसेक्सुअल है, और फिर कोई बोलता है कि मैं ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ। फिर ये है कि इस तरह के, या फिर Asexual people as well. एसेक्सुअल होते हैं, और एक होता है कि जी मुझे सिर्फ अट्रैक्शन होती है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस जेंडर से है। तो इसमें इन्होंने तकरीबन 80-70 और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये जेंडर आए जा रहे हैं बार बार। तो ये मामला जो है ये इसकी वजाहत कर रही है कि इसमें जो मोहब्बत है, हर तरह की मोहब्बत को सेलिब्रेट किया गया है, और उसका जो इजहार है वो वीडियो के अंदर किया गया है कि लड़का, मतलब जितना वो दिखा सकते थे इस छोटी सी वीडियो के अंदर, उतना उन्होंने दिखाया जो पॉपुलर है, मतलब जो LGBTQ के आप समझ लें कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इसमें रखा गया है। If I heard the song without the video, it would have had a Yeah. different meaning for me. Yeah. तो ये इनकी बात बड़ी सही है कि अगर आप सिर्फ इस गाने के अल्फाज सुने लेकिन आप वीडियो नहीं देखें तो यू माइट हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, आपको फ़र्क अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। बिल्कुल, और हम मेरे ख्याल से ये सभी का एक्सपीरियंस रहा है जो गाने सुनते हैं इंडिया पाकिस्तान के। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब इंसान वीडियो देखता है तो बंदा बोलता है ये वीडियो, या इवन इंग्लिश गाने की जब आप गाना सुनते हैं और उसकी वीडियो विजुअलाइजेशन देखते हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं यार मेरे जहन में तो कुछ और था। जिस तरह के कभी कोई कहानी देखते हैं तो उसमें जो किरदार होते हैं उनकी तस्वीर हमारे जहन में डिफरेंट होती है, और जब वो जो किरदार जो प्ले करता है उसकी तस्वीर जो होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसी तरह ये है कि ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गाना सुन करके सिर्फ जो है ना आपको ये महसूस नहीं होगा कि इसमें ये बातें कही गई हैं, यहाँ तक कि आप उसकी वीडियो देखें और इसमें फिर आपको जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ तरीके से बताया जा रहा है कि क्या मामला है। And I wonder if it works the opposite way as well too. So someone who just looks at the images without listening to the song, they might have a different interpretation or reaction to those images. You know, for most of us, certainly for Muslims, these images would not be attractive or beautiful images. You know, to be honest with you, they would be repulsive images. But when you line it up with a very nice song that has good rhythm and good beats and so forth, it's going to make people kind of almost emotionally manipulate people into liking images that they otherwise know, like that's not right. That's something that there's something not right there. That doesn't go with our religious beliefs, with our philosophy. But I'm just so impressed by the message in the video, like the whole pride and LGBTQ, and you know, even in Times Square there was a rainbow heart on the billboard at the back. So like these subtle things also, like it was. तो यहाँ पे इन्होंने साफ माना कि ये जो वीडियो है ये प्रो गे वीडियो है, राइट? इट इज़ प्रो LGBTQ, और इन्होंने भी उन्हीं चीज़ का उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वो जो दिल का मामला है और जो लड़की और ये सब है। तो ये कि जो हमारे लोग हैं, क्योंकि असल में हमारे यहाँ ये आइडेंटिटीज़ मौजूद नहीं है तो हम इनको इस तरीके से नहीं देखते। हम बोलेंगे इसमें क्या है, अगर कोई वीडियो इंसान देखे, आम बंदा देखे तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो वेस्ट के अंदर हैं, या तो फिर वो इस मामले में जो है वो शरीक हैं, जो इस तरह के मतलब ये है कि हम जिन्स परस्त रिलेशनशिप्स में हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा, या वो जो पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं बाहर जा कर के, या जो दूसरी जैसे कहते हैं ना कि दुनिया के मामलात से वो वाकिफ़ हैं। लेकिन आम इंसान के लिए उसको पता नहीं चलेगा कि जी ये पाकिस्तान में बैन क्यों हुई है, या इसको जो है उसको सिंगल आउट क्यों किया गया। अली सेठी के ख़िलाफ़ तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि उसकी नफ़रत में या उसको इसकी वीडियो को अनपॉपुलर करने के लिए किया गया है। मतलब ये कि ये बात जो है ये बिल्कुल आईने की तरह साफ़ है कि जो अली सेठी अपना एजेंडा जो और जो सबवर्जन जो करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल सामने है, रोज़े रोशन की तरह आया है जिसको कहते हैं। So he's like, नहीं, इस गाने के लिए video should be a message that, you know, kind of full acceptance. Will, yeah, and will Total hopefully, yeah, a video that will make a difference in people's thinking and all of that. ये जो दूसरी औरत ने कहा full acceptance, what does full acceptance mean? Like, does any society have full acceptance? So even the Western societies that they are so desperately trying to emulate and trying to copy and reproduce in the East,
Even these Western societies that we live in, do they have full acceptance when it comes to, you know, every kind of love? Like, is love always a good word that you can never ever oppose? तो ये कि हम ये कहते हैं कि जी मोहब्बत की हदूद नहीं है और जो चाहे जिस तरह करे, तो फिर ये है कि ये कहाँ तक जाएगा? फिर ये है कि जब वेस्ट के अंदर बहन चाहती है कि अपने भाई से शादी करे और ऐसा मामला हुआ है और हाई कोर्ट में गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, या ऐसा कि औलाद जो है अपनी अम्मा के साथ या बेटी अपने वालिद के साथ, फिर जानवरों के साथ, मतलब ये कि जर्मनी में इस बारे में भी लोगों ने कहा कि हमें अपने जानवरों के साथ जो है वो मोहब्बत करने का जो दूसरे तरीके हैं उनको उसकी इजाज़त दी जाए, लेकिन ये कि जर्मनी ने अभी तक उनको बैन कर दिया। तो ये कि इसकी हदूद फिर कहाँ तक जाती हैं? तो फिर तो कोई भी इंसान ये इससे बचा हुआ नहीं रहेगा। So in other words, it's very easy to say celebrate love, love. It's all so sweet, oh, it's so beautiful, all kinds of no boundaries, right? But in fact, you know, there are always boundaries. Hudud to hamesha honge. So when it comes to incest, necrophilia, pedophilia, zoophilia, I think, you know, sex with animals, Right. you know, even Western societies, you know, they draw the lines somewhere, right? So the difference is really that of thresholds. It's not that as Muslims, you know, we oppose love and non-Muslims don't. It's more like, no, we all have our limits and our thresholds. And where those thresholds are is what differs. Yeah. And unfortunately in the West they're becoming thinner and thinner. Exactly. And love cannot have a language. Love cannot have, you know, a foundation. Love is just love. So I think by foundation she meant boundaries. तो वही बात होगी, you know, she's saying love cannot have boundaries. लेकिन अगर इनसे भी अगर पूछा जाए कि कुछ had hai ke nahi, is there a limit or not, right? Then of course there would be, but they would say yes, where the West draws the limit, that's where we should draw the limit as well too. अक्सर ये है ना कि ये जो बाउंड्रीज हैं इनका जो ताल्लुक है अक्सर जो है वो जो वेस्ट के अंदर है उसी एजेंडे को फॉलो करते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। अब देखें कि जो भी मामला जो वेस्ट में हो चुका है उसके कॉपी कैट रिएक्शंस आते हैं यहाँ पे, और जो बातें वहाँ पे हुई हैं उसी को करते हैं, मतलब कोई नई चीज़ लेकर के नहीं आते। It's borrowed ideology from the West, borrowed philosophy, borrowed even borrowed slogans, even borrowed language, you know. Mera jism, meri marzi, my body, my will, my choice or whatnot. Everything is borrowed from the West, and ओरिजिनल चीज़ नहीं है। right, and it kind of frustrates me, like, you know, as a Muslim in the West, you know, when I look towards, you know, the Muslim East and I see them trying to emulate and copy. You know, I say even to the liberals and to the modernists in those Muslim societies, you know, why can't you at least be creative? You know what I mean? If you really want to be progressive, go one step ahead of the West and say, look, we're legalizing brother-sister incestuous relationships. You know what I mean? That's how progressive we are. We're ahead of you. We're not waiting for you to lead and then we follow you 30 years later, right? This is pathetic, you know what I mean? So now when we think about that article that we started with, in which he stated that he can do a lot of subversive messages through his music and through his art, now it kind of makes sense that what he's trying to subvert then is traditional marriage, traditional society. He's trying to subvert that, traditional sexuality, if you like. बिल्कुल, और इसमें यह है कि जो हार्वर्ड वाला इंटरव्यू है उसको अगर आप देखें तो आप बोले मतलब जिसे कहते हैं कुछ पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, लेकिन यह है कि जब आप इसका दूसरा इंटरव्यू जो अभी हम आपके सामने पेश करेंगे, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं जी ये मामला डिफरेंट है और ये खुल करके सामने आ रहा है। तो ये है वो इंटरव्यू जो अली सेठी साहब ने दिया टू znewsindia.com। तो इस इंटरव्यू में अली सेठी साहब से पूछा गया, what is your take on Delhi High Court's verdict on decriminalizing homosexuality in India? तो ये अली सेठी साहब का जवाब है अंग्रेजी में, जिसका तर्जमा नईम भाई देंगे। अली सेठी साहब कहते हैं, I believe it is wonderful. India should take a lead in such issues, and then Pakistan and Afghanistan in the subcontinent will follow. In Pakistan, the sex law is very strict. Sex outside marriage is punishable. Why would it bother anyone what two people do to each other? You should have the right over your body. अली सेठी साहब कहते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी नया फैसला पास हुआ है कि हम जिन्स परस्ती इंडिया के अंदर जो पहले बैन थी अब वो बैन नहीं रही। The homosexuality अब जायज़ हो गया in the Indian law. तो अली सेठी साहब से ये पूछा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ जो फैसला हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, और फिर
पाकिस्तान और उसके बाद अफ़गानिस्तान में इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर लॉ है कि जो जिनसी ताल्लुकात हैं जो सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान जायज़ हैं, अब वो किसी के साथ भी जायज़ होना चाहिए। और ये है कि इसके अंदर जो है मेरा जिस्म जो है जो भी दो अडल्ट जो हैं वो करते हैं उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होना चाहिए, कोई लिमिट्स नहीं होना चाहिए कि वो जिस तरह भी करें। और शादी की ज़रूरत नहीं है और इन चीज़ों को क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर इनको सज़ा दी जाए, बल्कि इसको खुला खाता रखा जाए जिस तरह वेस्ट के अंदर है। So this is not our interpretation of Ali Sethi's words, but he's clearly saying that the decision to legalize homosexuality in India, that is something to be celebrated, which Pakistan should also follow. Pakistan should copy. And sex outside of marriage, यानी कि ज़िना जो है, ज़िना जायज़ होना चाहिए पाकिस्तान में भी, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उन्होंने ये अल्फाज तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि you should have a right over your body, क्योंकि सोचने का अंदाज़ ये है कि ये मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी, बिकॉज आई ओन माई बॉडी, इट्स माई बॉडी। लेकिन ये इस्लाम में नईम भाई ये किस हद तक सही बात है कि आई ओन माई बॉडी एंड आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विद इट। इफ आई वांट टू किल माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स? आई एम नॉट हार्मिंग यू। तो असल में ये है कि इस्लाम के अंदर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में वो ये है कि जो जिस्म है और जो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं ये सारी जो हैं ये अमानतें हैं और अल्लाह ताला इन सब का हिसाब लेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जैसा हमारी मर्जी, क्योंकि हम इसको ओन नहीं करते। Well, I didn't make my body, I didn't design my body, I'm not making my heart beat, right? So Islamically, in the ultimate sense, really, it's God who owns us. Yeah, बिल्कुल। तो इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, हमें असल में मसला अली सेठी से नहीं है, गाने से नहीं है, उनकी जिस तरह का म्यूज़िक है उससे नहीं है। हमें मसला इस मैसेज से है जो वो देना चाह रहे हैं और जिसको उन्होंने एजेंडा बनाया है और जिसको जो ये वीडियो जिसकी अक्कासी कर रही है, हमें मसला इस चीज़ से है। तो ये मसला नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ हैं या दुश्मन हैं या मुल्ला हैं या दकियानूसी हैं, बल्कि हमारा मामला जो है वो इस्लाम के साथ है कि अगर हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें इस्लामी इक़दार के तहत रहना चाहिए तो हमें इन चीज़ों को अपोज़ करना है। हमें इस बात को खुल कर के कहना है कि नहीं जी ज़िना है और हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हराम कारी है वो हराम कारी है, हम जिन्स परस्ती। देखें ये मामला जो हैं ये हर सोसाइटी में होते हैं। हम जिन्स परस्ती भी होगी, ज़िना भी होगा, कत्ल भी होगा, ज़िना बिल जबर भी होगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें, अपनी माशरत के अंदर अपने दीन का हिस्सा बना लें, तो ये कभी भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। और कुरान पाक में तो लिखा गया है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, दैट एवरीथिंग इन द हेवंस एंड द अर्थ belongs to Allah, right? So, the question is, are you in the heavens and the earth? Am I in the heavens and the earth? Is Ali Sethi in the heavens and the earth? If he exists in the heavens and the earth, then ultimately we all belong to Allah, right? So this idea that I can just do whatever I want with my body, if I want to cut off my hand, I can do that. If I can if I want to disfigure myself, tattoo myself, if I want to sleep with so-and-so. But this is part of Western, very atheistic kind of thinking and philosophy. It is not something that is organic to Islam. बिल्कुल नहीं। तो ये कि अपने जिस्म के ऊपर जो है हमारी मर्ज़ी की बाउंड्रीज़ हैं और हमें उसी के तहत रहना है। क्योंकि ये कि वेस्ट के अंदर तो अब ये है कि आप खुदकुशी भी कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आप पेन नहीं झेल सकते, या फिर ये है कि औलाद बच्चा गिरा देना बिल्कुल आखिरी स्टेजेस के अंदर। तो ये कि इन चीज़ों की इजाज़त इस्लाम हरगिज़ नहीं देता। और ये ऐसी चीज़ें नहीं जो डिस्प्यूटेड है, मतलब ये है कि आप बोले कि नहीं जी देवबंदी कोई इख्तिलाफ नहीं है इन बातों पे, बिल्कुल, या हनफी या वहाबी या अहले हदीस, इनमें कोई इख्तिलाफ है। ये ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर इस्लामिक लॉ के अंदर कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा। तो ये ऐसी क्लियर चीज़ें जिसके बारे में जैसे कहते हैं कि आप किसी भी मकतूआ फ़िगर के फॉलोअर हों तो इसके अंदर आपको कोई इख्तिलाफ राय नहीं मिलेगी। तो ये नहीं है कि हम कोई स्पेसिफ़िक किसी फ़िरके का एजेंडा पेश करना चाह रहे हैं या उसके मुताबिक वीडियो बना रहे हैं, बल्कि ये इस्लाम का एजेंडा है। तो एक आखिरी सवाल है नईम भाई, और वो ये है कि म्यूज़िक का जो मकसद होता है, इन म्यूज़िक वीडियोस का जो मकसद होता है, it's not intellectual really, it's not philosophical really, it's emotional. It's meant to strike an emotional chord in you. It's meant to connect with your feelings. You know what I mean? तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे, अली सेठी के फैंस होंगे,
और शायद वो ये सोचें कि यार ये जो मौलवी टाइप हैं इनको क्या पता है, इनके पास तो दिल भी नहीं है, दे डोंट हैव एनी इमोशनल कनेक्शन, दे कैन अप्रिशिएट आर्टिस्टिक टैलेंट। तो हम उनको कैसे समझाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि व्हाट इज़ इन अग्रीमेंट विद कुरान एंड सुन्ना। गाना तो मुझे भी, अगर मैं सुनूं तो मुझे भी अच्छा लगे, लेकिन यह है कि हर चीज़ जो हमें अच्छी लगती है which connects with our feelings, it's not necessarily good for us. ये तो मानी हुई बात है कि देखें जो शैतान जो हर गलत चीज़, बुरी चीज़ को जो वो प्रमोट करना चाहेगा, तो पैकेजिंग तो वो उसकी अच्छी करेगा। पैकेजिंग तो he is going to make, Satan is going to make things look very beautiful and very attractive to us. Yeah, absolutely. असल में एक जो सबसे कम दर्जा है किसी भी चीज़ का इस्लाम के अंदर, वो ये कि कम से कम गुनाह को गुनाह समझे। तो ये है कि हमें इस बात का एहसास है कि हर इंसान गुनाह करता है, और यह है कि हमसे कोताहियाँ होती हैं, लेकिन यह है कि कम से कम गुनाह को गुनाह तो समझें। नमाज नहीं पढ़ रहे तो हम ये तो समझें कि भाई हमने गलत कर रहे हैं, या कोई औरत पर्दा नहीं कर रही तो कम से कम ये समझे कि पर्दा करना जो है वो इस्लाम की तालीमात में से, लेकिन मैं नहीं कर पाती, मेरी कोताही है, या दाढ़ी रखना या हज करना या रोज़े ना रखना। तो आखिर में मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे, and this is the danger of music, right? The fact that it can emotionally manipulate you. So for me, the bottom line is that, like, no matter how beautiful a piece of music might sound, no matter how beautiful some poetry might sound, no matter how beautiful a piece of art might look to me, what's more beautiful to us Muslims, alhamdulillah, to all of us, what's more beautiful to us is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We believe Allah is more beautiful. You know, the teachings of our Prophet sallallahu alaihi wasallam are more beautiful than anything Ali Sethi can produce. I know that he's a talented artist, but more beautiful than that is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So this is part of the test. You know, we all know intellectually that shaitan is going to try to lure us, to attract us, right, by making things look beautiful. But in the moment, sometimes when people are listening to that song, they might feel like their heart being kind of compromised, and they feel kind of lured to the other side. लेकिन हमने ये याद रखना है कि कुरान पाक और हदीसों में, नबी पाक के सुन्ना में हमें क्या सिखाया गया है, and the challenge for us is to stick to that, and to stay away from such temptations and recognize, like, the danger of the messages that are often in these songs.